Good morning, everyone. Festive season is here. How is everybody doing today? आज तो टॉपिक ही कुछ अलग ले लेते हैं और मैंने इधर कोरा पे ब्राउज किया है टॉपिक डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पर ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना एपिसोड ऑन डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। व्हाट इज दिस केस ऑफ द पुणे ओल्ड मैन हु लॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज टू अ डेटिंग स्कैम? साउंड्स इंटरेस्टिंग। और ये ऐसा क्या स्कैम हो गया कि उनके लाखों रुपए चले गए? हुआ क्या था, जरा जानते हैं। आई नो men are lonely but didn't know some of them are so lonely that they lose their minds and fall into traps that easily। ठीक है, किसी के बारे में बोल रहा है ये ऑथर, not necessarily I support his view, just it's the story sounds something new and interesting, so I am reading it out। उनका क्या व्यू है और फिर अपना व्यू भी of course बताऊंगा। So हुआ क्या है? A dissatisfied, desperate old man about 76 years of age with colorful dreams was looking forward to dating high society women and earning money simultaneously. Yes, he believed a friendship club was paying men to date, choosing women. So it started with a newspaper advertisement last year. The ad promised dates with high-profile women and an opportunity to earn money along the way. Grandpa called the given number and the trap, and then the scammers took over rupees 60 lakh from the old man in the name of membership fees, security deposits, and other excuses. He transferred all the money to the scammers between May 2021 and February 2022. When Grandpa eventually realized that he was being played with, he went to register a police complaint. The mastermind had already been arrested. After the police complaint, a woman aged 28 was also nabbed, whose bank account was used to receive the old man's money. Grandpa learned the lesson the hard way. But then it sounds positive that the police came to the rescue of the old man. Yeah, that was great job. Well done, police, Indian police. We can expect that a 76-year-old can fall into such traps, but what about a much younger software engineer at 48 years of age? Younger software engineer at 48? Yes. और थोड़ा यंग बताता उसको। This Thane resident recently lost rupees 6.33 lakhs to online dating. Similarly to this old man, this guy called the scammer himself. He had received an SMS about an online dating service and called the given number. The man sought rupees 38,000 from the victim to create a dating profile. The victim paid not just but made several other payments. How smart that all these excuses sounded legit to this software engineer. Some cases are like that, और यहाँ पे scam हो गया. So he has also quoted the sources. Online fraud in Pune. 76 years old man duped of rupees 60 lakhs on pretext of dating high profile women. Two got arrested, and this is on Google it seems, and the same story has got published on Quora. So my view is ultimately police did help out the poor guy, and even the old aged grandpa. I think he is luckiest to be helped by the law, and I think one should believe in law. One's belief will then increase इसको इस स्टोरी को जानने के बाद में। बट हाँ, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स ये सभी ट्रैप्स चल रहे हैं एक नए नए तरीके के आपको उल्लू बनाने के लिए। ठीक है, ये लेते हैं, ये अच्छा है। What are some psychological facts about love? लव तो साइकोलॉजिकल थिंग है ही। लव एक रिलेशनशिप्स का मुझे लगता है हार्ट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कोर लव ही है। और लव के बारे में मुझे जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिव थॉट सदगुरु जी का याद आ रहा है वो ये है कि लव में ऐसा होना चाहिए कि
जो हम चाहते हैं नेसेसरीली नहीं है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसे वैसा ही करना है। लव का मतलब तो ये हुआ कि जैसा उसकी एस्पिरेशंस हैं, जैसा उसको पसंद है, आप उसमें हेल्प करें कि उसके गोल्स अचीव हो जाएं या उसकी फीलिंग्स और बेटर हो उस चीज़ के बारे में, उसकी पसंदीदा जो भी उसकी चीज़ें हैं वो उसे ज़्यादा खुश हो। सो इट्स नॉट लाइक वॉट यू फील एंड हाउ यू वॉन्ट थिंग्स टू गो reflects love. It's about you are doing something for the person in your relationship, for about their interest and keeping their interest and themselves as priority against your own prioritized thoughts. Okay, so telling a girl you love her regularly will build up her self-esteem and make her feel beautiful. Acha, so this is a psychological thing. Girls love being flattered, therefore making her feel loved will win your heart. Your heart nahi, will win her heart. Acha, so seems like an advice about reaching out a girl. हाँ, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था ये. ये ऐसे क्यूरियस क्वेश्चंस आ जाते हैं क्यों पे, लाइक व्हाट इज समथिंग यू हैव नेवर डन. सो देयर इज दिस ऑथर हु इज शेयरिंग हर व्यू पब्लिकली एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू कोट हर बिकॉज मुझे अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई हैव नेवर ट्राइड डन ड्रग्स, kudos to you. Never hidden never ridden on a roller coaster. That sounds weird. रोलर कोस्टर पे एक आधी बार तो यार राइड होनी चाहिए. नेवर ईटन स्टार फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट और पोमेलो. ठीक है, दिस कुड बी योर ओन चॉइस. नेवर हैड द ड्रिंक. दिस इज अ टाइप ऑफ अ ड्रिंक, लुक्स लाइक सेक्स ऑन बीच कॉकटेल. ये क्या ब्रांड है ये नहीं पता था मुझे. नेवर ट्रैवल टू एनी प्लेस अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड दुबई. दुबई में गए हो और सेक्स ऑन बीच कॉकटेल नहीं पिए. ये ड्रिंक ये ऐसा लिख के आगे ये तो नहीं लिखा है इसने कि सेक्स ऑन बीच कॉकटेल, नहीं ये कोई ब्रांड ही होगा. नेवर ट्रैवल्ड ऑन अ शिप और अ हेलीकॉप्टर. नहीं ये मैंने किया हुआ है हेलीकॉप्टर में एग्जैक्टली नहीं, बट इट वाज अ ग्लाइडर प्लेन इन माय in Indian Air Force base. At childhood there was this air shows we have in Indian Air Force days at prior to days, and there are Air Force shows that are happening every year, semi-annually or annually. So I think at that point of time when I was in 4th standard or 3rd standard, I was lucky enough to get into a glider plane and experience the beauty of first time how the sky life feels like. ऊपर प्लेन में जो है बैठ के, बट हाँ छोटा था, उतनी ज़्यादा यादें नहीं है, बट वो कुछ लम्हे जो ऊपर ग्लाइडर में बिताए थे वो आज तक भी वो जहन में रहता है. जब भी रोलर कोस्टर राइड करते हैं, कभी ऐसा ड्रॉप जोन में जाते हैं, कभी देखा होगा ना अम्यूजमेंट पार्क्स में ड्रॉप जोन रहता है तो एकदम से हाइट पर जाते हैं, तो ग्लाइडर जैसा एक एक्सपीरियंस आता है कि ऊपर एकदम से वो हार्ट बीट फास्ट हो जाना, और इट्स सरियल एक्सपीरियंस एंड या इट्स अमेजिंग. Never done skydiving or bungee jumping, so these are also on my list. मैंने भी नहीं किया है. Never use the toilet on a train. Yeah, that is weird. So कोई लंबी जर्नी की नहीं होगी, नहीं तो अगर ट्रेन में लंबी जर्नी कर रहे हो तो फिर शायद यूज करोगे ही ट्रेन का टॉयलेट. और इतना बेकार नहीं रह गया यार आजकल. इंडियन रेलवेज अच्छा है, मुझे तो ठीक ही लगता है. ये मैं बोल रहा हूँ 1-2 साल हो गया होगा मेरे को ट्रैवल खुद से किए हुए. But anyway, never stayed up all night. कोई जग रहा था यानी बेसिकली आपने नहीं किया, बट करना चाहिए, ये एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है. I am 30, never have been in a serious relationship and obviously never had sex. Yeah, this is also amazing. I mean personal choice होती है और it's pretty normal. That's great. उन्होंने अपना फोटो भी डाला और then shared it and I have upvoted it, so I relate to it. Not on the sex part. Can astrology predict the exact timing of marriage?
सो दिस डजंट इंटरेस्ट मी, बट ठीक है आज पढ़ ही लेते हैं यार। ये बहुत क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखा रिपीटेड, और इसको अपवोर्ड्स, नंबर ऑफ अपवोर्ड्स भी मैं देख ही रहा हूँ। सो लेट अस सी कि आई होप कि ये थोड़ा रियल आंसर निकले। सो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट कर लेगा आपकी टाइमिंग ऑफ मैरिज? सो नो, astrology cannot predict the exact timing of marriage but can give a rough idea about the same. Obviously if astrology could predict the exact timings of various events, then all the astrologers would have been next to God. सही कह रहा है। So anyway, I'll tell you about an incident that happened in my family that will make you understand the power of astrology when it comes to predicting the future, especially in marriage. So there is some story also, कुछ बैकअप कर रहा है। My father's sister has been very concerned about her daughter's marriage as she was not agreeing to get married and wanted to focus on a career, but my aunt believed that she should get married as right now age is on her side. Age factor, ठीक है। One day when we went to their home, my aunt discussed the whole situation with me and asked me to take my to talk to my cousin about the same. So I talked. She told me that she has no problem getting married, but right now she wants to build herself and gain financial independence, and she was on right track. Kudos there. Also, she said that she wants a partner who understands her and should not consider her as a responsibility. But ऐसा क्यों? अगर पार्टनर होगा तो वो responsibility तो म्यूचुअल होगी ना। अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे और जान लेने के लिए भी तैयार रहेंगे, और बाकी इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्यों नहीं होती? आई रियलाइज दैट नीदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग ऑन देयर पार्ट एंड आई इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट दे नीडेड सम गुड एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस दैट ओनली ये साला प्रमोशन कर रहा है कोई ना कोई तो उसने अपना एक ये दे दिया, एनी टाइम एस्ट्रो कैन प्रोवाइड। बट एनीवे, एनी टाइम एस्ट्रो इज बीइंग कॉल्ड आउट हियर। सो आई आस्क्ड माय ऑन टू डाउनलोड दिस ऐप एंड रजिस्टर देयर। सो आई थॉट शी विल नीड हेल्प, बट टू माय सरप्राइज शी डिड इट ऑल बाय हरसेल्फ एंड टोल्ड मी दैट दिस ऐप इज सो इजी टू यूज एंड शी फाउंड इट वेरी कन्वीनियंट। अच्छा, so there she connected with an astrologer and discussed her concern. After obtaining the necessary details, the astrologer told her things that relieved her so much. एस्ट्रोलॉजी कमिंग टू, सो मैं सीधा एक अभी है ना इसका कंक्लूजन पढ़ देता हूँ, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा है मेरे को इसमें। सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल दैट एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू सम आइडिया अबाउट योर मैरिज टाइम। इट कैन गिव यू रफ आइडिया, बट देन टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है लाइफ में, है महादेव की कृपा रहती है तो चीज़ें होती है कई बार। और आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइफ के वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि चाहे मैरिज है चाहे फ्यूचर है, अगर इसको कोई भी 100% प्रिडिक्ट कर पाता है एक्यूरेटली, सो व्हाई देन there is this gist of unknown things. So future is like very unknown, और present is called present, और ये gift इसलिए ही बोला जाता है कि all you can do is to manage your present really, because future is not in your hand and what you do in your present actually becomes past. और जो आपके हाथ में होता है और जो आप करते हैं वही पास बनता चले जाता है, और शायद उसी से इतनी सारी जजमेंट्स आ जाती हैं, इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, और फिर ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट ले रहा है, कह रहा है बंदा, व्हाट आर सम स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वुमेन। चलो ये पढ़ लेते हैं यार, क्या बोल रहा है इसमें। सो लेट मी टेल यू विच फैक्ट्स विल सरप्राइज यू। आर देयर फैक्ट्स अबाउट वुमेन दैट कैन सरप्राइज अस टुडे? लेट्स सी। फ्लेक्सिबिलिटी, The body of women is very flexible as compared to men. ये मुझे पता है, और मैं जितने भी योगा वीडियोस देखता हूँ तो ऐसा नहीं है कॉन्टोर्शनिस्ट केवल मेन भी हैं, बट उनको बहुत ही एक अच्छी जो कंपटीशन दे रही है वो विमेन है। हालांकि जो इंडिया के नेशनल लेवल पे जो जीत रहे हैं ना योगा कॉन्टोर्शनिस्ट वो मेन ही हैं, बट या विमेन, आई थिंक 100 में 95 विमेन विल बी मोर फ्लेक्सिबल व्हेन डूइंग योगा पोजेस। फ्लेक्सिबिलिटी से मुझे योगा ही एक समझ आता है, और बाकी चीज़ें होंगी, बट आई थिंक बॉडी को तोड़ना मरोड़ना और उन पोजेस को कर पाना जो इनक्रेडिबल पोजेस हैं। सो आई थिंक वुमेन आर बेटर इन फ्लेक्सिबिलिटी, बट इट डिड नॉट सरप्राइज मी रियली। साइज ऑफ बोथ ब्रेस्ट्स, अच्छा अलग होता है क्या? ये क्या? देयर इज अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ बोथ द ब्रेस्ट्स ऑफ वुमेन एंड दिस कैन बी ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्किन ऑफ द बॉडी, द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इन द ब्रेस्ट और मैनी अदर रीजंस। मैं कोई एक्सप्रेशन अभी देना नहीं चाहता इस पे, बिकॉज ये एक ऐसा एक मेडिसिन फील्ड वाले जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सो ऐसा समझ लो, ऐसा मैं समझना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, साइज ऑफ बोथ ब्रेस्ट। ओके,
टॉकिंग मोर, वी ऑल नो दैट women speak more than men. जरूरी नहीं है भाई, कई आदमी भी बातें करते हैं काफी, नॉट मी बट या देर आर मैन हु स्पीक मोर एंड द मोस्ट, मुझे जो सबसे ज्यादा बातें करता दिखता है वो जो रोगन है, और या वो काफी बातें कर लेता है यार, बट यू हार्डली नो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, सो लेट मी टेल यू. अच्छा, ये अभी रीजन बताया कि व्हाई women स्पीक मोर देन men. So there is a protein called FOXP2 in women. देखो जो भी है इंफॉर्मेशन इसे ही कहते हैं. ये रीड आउट लाउड करना तो जस्ट एक पर्पज है टू ब्रिंग अप इंफॉर्मेशन टू लाइफ, बट ये जो चीजें पता लगती रहती है ना FOXP2 और प्रोटीन के बारे में, साला मेरे को एक डेकेड हो गए इस प्रोटीन के बारे में पढ़ते पढ़ते, रैंट करते करते, और ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, मुझे पता भी नहीं है FOXP2 क्या होता है. एक प्रोटीन टाइप होता होगा, बट ठीक है देखते हैं, गूगल करूंगा और इसके बारे में पता करूंगा ये क्या है. सो FOXP2 सीम्स टू बी हायर इन women compared to men. अच्छा, so there is a reason for speaking, and this protein is found more in women than in men, and that is why we see that most women talk more than men. मेरे एक्सपीरियंस में कई women ऐसे भी जो शांत हैं और ज्यादा बातें करना पसंद नहीं भी होता है कई बार. ठीक है. So listening more, according to men, women can hear more. अच्छा, तो वो बोलती भी ज्यादा और सुनती भी ज्यादा, ये कैसे होता है भाई एक ही साथ में? अगर वो बोल रही होगी तो क्या वो जरूरी है वो सुन भी ज्यादा रही होगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे पता नहीं. आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर. सो अकॉर्डिंग टू men, women can hear more and more clearly. The biggest example of this, which you all must have noticed, is that even when the mother is sleeping, she wakes up immediately, even when her little children cry lightly. अबे ये तू वो एग्जाम्पल दे रहा है मदर का कि बच्चा रोएगा, मैं ये कहता हूँ कि उसको बच्चे की आहट से भी पता लग जाता है कहाँ पे, तो एग्जाम्पल कुछ और देता है यार. माँ को पता ही होता है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है. अगर वो बच्चा 200, 300, 400, 1500 ओवरसीज इतने किलोमीटर्स भी दूर है, तो भी 7 समंदर पार भी है, तो या फिर 3 समंदर छोड़ के ही पार भी रह रहा है, तो भी उसको पता लगता है अगर उसके बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है या बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है. ठीक है. सो माँ बाप का एग्जाम्पल क्या दे रहा है इधर, बट हाँ, लिसनिंग मोर debatable, but yeah, this is a wonderful quality to have really in life. So being sensitive to relationships, ये इसने एक और point highlight किया है, but these points are like not so surprising to me. I don't know why. So women are more sensitive about relationships than men. जरूरी नहीं है और जनरल में भी नहीं बोल सकते, because they contain more hormones called oxytocin. ये सुना हुआ है मेरा, बट ये पता नहीं था कि ये more हार्मोन इनमें विमेन में ज्यादा होता है, विच वी ऑल्सो कॉल्ड दी लव हार्मोन. लव हार्मोन नहीं पता था मेरे को. ऑक्सीटॉक्सिन सुना बहुत बार है, बट हम ऑक्सीटोसिन, राइट, इट्स लव हार्मोन. और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जान के करना भी क्या है यार, बट फिर भी जो पता नहीं है लिख लिया. एनीवेज, ब्रेकअप्स के बाद भी बात कर ली जाए. अरे उससे पहले एक यार हल्का सा कुछ संगीत हो जाए, बड़ा अच्छा सा दिमाग में ऐसे ही आ रहा था. विकी डोनर है यहाँ पर, आयुष्मान खुराना जी का गाया हुआ है ये पानी दा रंग. कैसा है गाना? चाहिए थोड़ा सा 2 अल्फाज हो जाए. पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो हंजू रूल दे, अखियां जो हंजू रूल दे, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, रांझना ना आया, खादा नूर वेख के, अखादा नूर वेख के, अखियां जो हंजू रोल दे,
अखियां जो हंजू रोल दे. That was all. Back to question number. What did you do after a tough breakup that really helped you recover? So there is this student who has written an answer. ये भी पढ़ लेते हैं यार. ब्रेकअप्स होते हैं, जनरेशन को टाइम नहीं लगता है, बड़े बड़े वाली बातें करने लग जाते हैं. ओ मेरे को ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया. रैंटिंग है बिना मतलब की, बट ठीक है पढ़ लेते हैं, क्या है भाई. सो रीबिल्ड योर सेल्फ एस्टीम, ये एक प्रोसेस होता है और कई बार नहीं सीरियसली भी बात करनी चाहिए. टॉपिक्स दिस इज ऑल अबाउट लाइफ चैलेंजेस और यू नो इट्स अगेन द फेलियर्स. समटाइम्स इट्स फेलियर ऑन अ गाइज साइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड समटाइम्स अ फेलियर ऑन women or ladies part as well. Sometimes, only just sometimes it could be there, right? It can be there. So thing is, according to relationship experts, what you should really do if you are going through a breakup, then rebuild your self-esteem if it has hurt you really. Try 3 new places. Avoid going after a rebound. So ट्राई एनी ऑफ द 3 न्यू प्लेसेस. इसका मुझे मीनिंग ये लग रहा है कि कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए निकलिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है. एक सोलो ट्रैवलिंग भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है. आजकल सब कुछ अवेलेबल है विद इन मिनट्स ऑफ सेकेंड्स. अगर आप थोड़ा सा भी ब्राउजिंग करेंगे और आपको एक आप खुद से ही कैंपिंग पे भी निकल सकते हैं. अपना ट्रैकिंग ब्रेकिंग कॉस्ट्यूम उठाया, अपना लगेज पैक किया और निकल गए. ये जवानी है दीवानी मूवी का नाम कोट सही कर रहा हूँ क्या मैं, शायद उसमें ऐसा कुछ दिखाया है ना. तो सोलो ट्रैवलिंग भी जाना है, इट्स नॉट ए बैड ऑप्शन. सो ट्राई 3 न्यू प्लेसेस. अगर 3 नहीं हो सकता, 1 तो हो ही सकता है. सही कह रहा हूँ. अवॉइड गोइंग आफ्टर अ रिबाउंड. टेक अ रियलिस्टिक वॉक डाउन मेमोरी लेन. राइट डाउन all of their negative qualities. I didn't get that. किसकी negative qualities क्या बे. I think this is the moment. अगर किसी का कोई breakup हो रहा है तो उसको एक कामनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यू नो डील करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस से, rather than किसी और की क्वालिटी लिखे नेगेटिव पॉजिटिव. जो हो रहा है उसका करेगा क्या. सो let's let go of the idea of closure. Focus on things that help you feel grounded. Yeah, that is really more important. अगर आपको बट मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ज़्यादा ग्राउंडेड क्या वो ग्रेव जैसी भी फीलिंग होती है कई बार. बिकॉज इफ यू रियली लव समवन एंड यू रियली वांटेड देम इन योर लाइफ, बट देन देयर आर लाइफ सिचुएशंस एंड देयर बताया ना मैंने अनसर्टेनिटी इन लाइफ, एंड दैट्स व्हाट लाइफ हैड टू ऑफर वाज. क्या बात है, क्या साउंड मारिया लड़के ने बीच में. ले सही है बेटा, बेच ले अपना भी. ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है. हाँ ये अच्छा है. What instantly makes a person less attractive. ठीक है, ये मैं पढ़ देता हूँ. सो दिस इज एलिस एंड शी हैज रिटन हर ओपिनियन एंड लुक्स लाइक शी हैज डॉक्यूमेंटेड दिस वेल, और इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ. व्हेन ही गॉसिप्स, सो दिस इज अबाउट अ मैन शी इज टॉकिंग अबाउट. व्हेन ही गॉसिप्स अबाउट अदर पीपल इन माई प्रेजेंस. हाँ चूतिया है वैसे ही. मैं दूसरों की बातें करने का किसका समय होता है, क्या बातें कर रहेगा किसी और के बारे में. ही विल डू द सेम टू मी एज सून एज आई टर्न माई बैक. वो अपना ही देख रही है कि अगर ये दूसरों के बारे में इतनी बातें, अगर कैसी भी तरह नेगेटिव बातें कर रहा होगा तो वो अपना पहले हिसाब लगा रही थी कि ये अगर मैंने इसके ऊपर टर्न बैक कर दिया तो ये मेरे बारे में भी ऐसा किसी और से जाके कर ले. बट इट्स अ रियली टर्न ऑफ when it comes to relationships, and you know you just don't give your quality time to your person, rather than you keep hounding about other people, ranting out about stuff that doesn't matter to your both of your times. So time is quality, time is God. मैं हमेशा यही मानता हूँ. So time का अच्छा यूज होना चाहिए यार, है ना. And when he is not polite to the waiter, ये तो मेरा लाइफ प्रिंसिपल है और ये बहुत अच्छा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है. देखिए, जो बंदा वेटर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है वो जिंदगी में 99.99999% ऑफ द टाइम्स की बिहेवियर अच्छा रखेगा ही नहीं रिलेशनशिप में. ऐसा चांस ही नहीं है कि उसका जो है ठीक रहेगा बिहेवियर, क्योंकि वो एक बायस मोड पे है बंदा. अगर वो किसी पैसे वाले को देखेगा या किसी बॉस को देखेगा जिसके अंडर काम कर रहा है, तो ही वो LAUDA वो बंदा CHUTAY वो वाला बंदा एग्जैक्टली केवल उनकी ही चाटेगा और
ठीक है। सो वो ही इज नॉट ऑपरेटिंग एट ह्यूमन लेवल, वो आंखों पे काले चश्मे जो चढ़े होते हैं ना अनरियल वर्ल्ड के, और अपने आप को कुछ एक अलग नॉन ग्राउंड लेवल बोलता हूं मैं उसको अपनी टर्मिनोलॉजी में, जैसा मुझे समझता है। ये ग्राउंडेड बंदे नहीं होते, और दिस इज नॉट द क्लास ऑफ मैन, दिस इज नॉट हाउ मैन शुड बी रियली। वेटर भी एक जॉब है, जैसे किसी ऑटो ड्राइवर का एक जॉब है, किसी सफाई कर्मचारी का एक जॉब है, द क्लीनर्स, द वेटर्स एंड ऑल दीज आर ह्यूमन पीपल, सबका अपना जॉब है। जिस रेस्पेक्ट से आप वेटर को ट्रीट कर रहे हैं उसी रेस्पेक्ट से आपको सीईओ को भी ट्रीट करना है, या आपसे किसी और भी लेवल पे हो गया, ठीक है। सो या दिस इज वन ऑफ द वेरी अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एलिस हैज कोटेड हियर, kudos to her, that when he is not polite to waiter, मैं शायद इसको और फिलोसॉफिकल मोड पे ले गया। यहाँ पे बात पोलाइटनेस की भी हो रही है, तो पोलाइटनेस जब ही आएगी जब उसको वो इक्वली तोल ही रहा होगा, बात दोनों एक ही है वैसे। सो व्हेन ही ओनली टॉक्स अबाउट मनी एंड मटेरियल थिंग्स, हाँ ये भी ठीक है कि इतना ज्यादा क्या, वो ये तो फिर वही 3 इडियट्स वाली बात हो गई कि ये तो ब्रांड नेम पे चल रहा है। मेरी टी शर्ट और ये जो मैंने टी शर्ट पहनी ये कौन से ब्रांड की है, आज मैंने फेस पे क्रीम कौन से ब्रांड की लगा ली, आज मैंने आईलाइनर तुम्हें कितने का खरीदवा दिया, आज मैंने ये घड़ी जो बांध रहा हूँ ये कौन से ब्रांड की है, जूता मेरा कौन से ब्रांड का है, मेरी कार कौन सी ब्रांड की है, और देखो मेरा घर कितना महंगा है, और देखो ना मेरे इतने ज़्यादा जो है ये सब ये मटेरियल थिंग्स के बारे में जो भी रेंटिंग करता रहता है 24 घंटे, साहब बेवकूफ़ है, गधा है मेरे हिसाब से। और वो लड़की ने एकदम सही पॉइंट आउट किया है, इफ़ ही ओनली टॉक्स अबाउट मनी एंड मटेरियल थिंग्स देन ही इज जस्ट into money and materials more than you, and unfortunately that should not be the case in relationship. The most amazing thing in a relationship could be मनी एंड मटेरियल्स। उस बंदे से अगर लेना भी, भगवान ने आके ले भी लिया तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जा तू ये ले जा, मेरे पास मेरी वुमेन है या फिर मेरे पास मेरा रिलेशनशिप पार्टनर है जो मेरे लिए ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से कहीं बढ़कर है, कहीं और मायने में। हैव यू एवर सीन डॉग्स? मुझे नहीं लगता कोई और एनिमल है जो उसके जितना प्यार कभी भी देता है और उसके जितना एक्सेप्टेबल है। तो डॉग लव, आई एम अ बिग फैन, रियली बिग फैन। If he can't talk about various topics but only politics or sports, या ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। पॉलिटिक्स ठीक है चलेगा, बट स्पोर्ट्स, यार मैं स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइफ में, स्पोर्ट्स आगे भी खेलने की काफ़ी इच्छा है, बट एनी विच वेज स्पोर्ट्स आई थिंक इज आई कैन अंडरस्टैंड इट्स लाइफ, बट एनी विच वेज इट्स एलिस, इट्स हर व्यूज एंड लुक्स लाइक शी इज स्ट्रिक्ट। मैं जज नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट रेंटिंग। इफ ही इज नॉट अ जेंटलमैन, जेंटलमैन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू आर फक्ड। इफ ही ड्रिंक्स अल्कोहल इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक बोली लड़की। इफ ही हैज नेवर रेड अ सिंगल बुक इन हिज लाइफ, ये तो बात है ही भाई। क्या तो गैंगस्टर ही रहेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ गैंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो किताबें भी पढ़ते हैं। अपनी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। गैंगस्टर्स वैसे किताबें पढ़ते हैं, ये आप सोचिए। इफ ही हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर तो तब आएगा ना जब साला वो खुश हो गए, तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी होगी तो साला सेंस ऑफ ह्यूमर से ऑपरेट करेगा। बट हाँ, अगर वो वेटर को ठीक से डील नहीं कर रहा तो ही हैज सम साइकोलॉजिकल इश्यूज मैन। इफ ही सीज एवरीथिंग ओनली नेगेटिवली, ये तो स्क्रीन आउट होना चाहिए पहले दिन पे। वो बोलते हैं ना एसएसबी में फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होते हैं कितनी भी मेहनती आदमी हो, फर्स्ट डे स्क्रीन आउट मोस्टली। मैं ऐसी, जैसे ये बहुत ही वेग एग्जांपल है, पता नहीं क्यों आई डिड कोट एसएसबी हियर, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ, लेडीज के लिए अगर इफ एसएसबी इंटरव्यूज वर अ सिलेक्शन, ओनली द लेडीज वर सिटिंग देयर, ये सबसे पहले उसको हटाएंगे लिस्ट से जो केवल नेगेटिवली देखता है वर्ल्ड को। सो नेगेटिविटी इज लाइक दूर है वो एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव दोस ड्रैगन सेंसेस टू फील नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज जस्ट शिट, इट शुडंट बी अराउंड यू एनीवे। But I feel there were some interesting thoughts that Alice has put up here and I like them. Good, well done. अच्छा, ये इसी हफ्ते हुआ है कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स ने ये ऑफिशियली ट्वीट कर दिया कि वी आर ऑफिशियली गिविंग मंडे द
रिकॉर्ड ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ द वीक। सो ये मुझे थोड़ा सा एक मार्केटिंग उनका फिलॉसफी लग रहा है कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे होंगे या कुछ उतना वो नहीं मिल रहा होगा, तो सालों ने उठा के कुछ भी बकवास कर दिया। मंडे को बोल दिया कि दे आर रिकॉर्डिंग दिस एज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक। ज़रूरी नहीं है, किसी के लिए मंडे हो सकता है, किसी के लिए संडे हो सकता है। संडे को भी तो फीलिंग आ सकती है ना। ज़रूरी नहीं है कि संडे को सभी लोग आराम कर रहे होते हैं, या कोई जॉब्स ऐसे भी होते हैं जो एनुअली भी काम करते हैं। तो देयर इज, मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी वर्स्ट डे इन द वीक वाली फीलिंग है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लाइफ सिचुएशंस, और मैं इस पर ज़्यादा क्या फिलोसफी जाऊँ यार। जिसके लिए जौन सा दिन बुरा है, जिसके लिए जौन सा दिन अच्छा है, ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स ये क्यों नहीं डालते वी आर ऑफिशियली डिक्लेयरिंग एवरी डे एज अ संडे या फिर एवरी डे एज अ फन डे? नहीं, वो नहीं डालेंगे। इनको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, इनको थोड़ा सा वो चाहिए कि हमारा व्यूज़ बने, हमें कुछ ऐसा डालना है। ये क्या ऑफिशियली मंडे को ऐसा क्या हो रहा है मंडे को कि मंडे को वर्स्ट डे ऑफ द वीक बता रहे हो? अबे सोमवार है बे। हाँ, हिंदुइज्म में कुछ मीनिंग होते हैं सोमवार के, लड़ो। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड, CEO शुड बी फायर्ड हियर। भगवत दी लंडो। That's how in Ghaziabad, the native people, I've heard people using this kind of a, fuckery word in my native. So, Bhagavad Gita. Has anyone lost weight थ्रू दी हेल्दीफाई मी ऐप? मैं अभी ये वेट लॉस की जर्नी किसी ऐप के द्वारा मैं इस पे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, किसी ने अगर कर भी लिया होगा तो मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं लेने वाला हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि डेटिंग और रिलेशनशिप्स में क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और विच आर द वंस दैट आर गेटिंग रियल गुड अटेंशन रियली। ये क्वेश्चन ले गया, व्हाट मेल बॉडी पार्ट डू विमेन फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव? सो ये तो एक जनरलाइज कर ही नहीं सकते हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। और ये मैंने कई वीडियोस में भी देखा है, यूट्यूब के वीडियोस में कभी कभी सर्फिंग करता है ना, सो ऐसा फ्री टाइम में, तो ये क्वेश्चंस जिन से पूछता है वो बंदा जाके और वो बताते हैं अपना आंसर, तो सबका वेरिंग होता है। बट मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर बातें यहाँ पर, ये जस्ट मेरा गैस है और मैं इस गैस को लेना भी चाहता हूँ, यहाँ पे बातें ज़्यादातर आई थिंक एक अच्छी फिजिक की होने वाली है, एब्स की शायद हो जाए, अब पता नहीं डिक साइज तक जाएगा कि नहीं। देखते हैं क्या क्या बातें होने वाली हैं। विच मेल बॉडी पार्ट डू वुमेन फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव? सो एवरी गर्ल may have a different opinion, but I have watched some research videos and they have come up with following conclusions. Body and height, सबसे पहले तो ये तो जजिंग की बात हो रही है भाई, बॉडी एंड हाइट। इफ यू आर फिजिकली फिट यू कैन लुक गुड ऑन गर्ल्स। अब कोई तो रीजन होगा कि जो आपके अल्फा मेल्स हैं ना, वो क्या बोलते हैं, ज्यादातर एक्सरसाइजेज, ये फिजिक बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग और इन सभी चीजों में घुसते हैं। और अच्छा मैन होता है यार जब उसकी बॉडी फिजिक थोड़ी अच्छी लग रही होती है, और बॉडी हाइट ठीक है, जजमेंट की बात है, बट हाँ होता होगा ऐसा। इफ यू आर फिजिकली फिट यू कैन लुक गुड ऑन गर्ल्स, ये तो ट्रू है। और उसने बंदे ने फोटो भी चिपकाई है किसकी, ड्वेन जॉनसन की, ड्वेन द रॉक जॉनसन की फोटो डाल दी उन्होंने। इनका भी लेवल अलग ही है भाई साहब। ही इज आई थिंक नियरिंग 60 years of age. I think he should be 50 to 55 or he might be approaching 60 as well. I am not sure Dwayne Johnson की क्या एज है, but if you see him really, if you actively follow him, you will get to know his daily schedule and then you will feel like कि इस body shape को लाने में इसके पीछे जो मेहनत जाती है, जो 24/7 प्रोसेस है, वो कितना ruthless है। ठीक है, so इनकी फोटो तो चिपका दी इधर। दिस विल बी द फर्स्ट फोकस ऑन योर स्टैक। इफ द स्टमक इज फाइन यू कैन सेड्यूस देम। अच्छा, डोंट बी टू टॉल एंड डोंट बी शॉर्ट। ये अपने हाथों में होता तो कोई ऐसा करता क्या? शोल्डर विथ एंड बार साइज। शोल्डर्स चौड़े होने चाहिए, पतले होने चाहिए, ये सब अपने हाथों में वैसे ज्यादातर होता नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, बट होता भी है यार। कई बार मैं भी ऐसे क्यों बोलूं कि सी a man who has worked out या फिर who is actively working out looks really different, his energy levels are different, ये तो feeling wise हो गया, but he really looks different compared to a man who is not working out. So that is the truth and I say yes, he is talking sense. So if your chest is wide and your arms are wrinkled you may be attracted to them.
wrinkled arms, ये क्या होता है बे? So maybe they don't even like fat kids. Kids का ऐसा कुछ नहीं है, kids are loved. Women, kids and dogs, वो statement है ना, women, kids and dogs are loved unconditionally. ये बहुत true statement है ये। उन्होंने आई थिंक उन्हीं का ही वीडियो जिनको शायद ऑस्कर में दिस गाय विल स्मिथ स्लैप्ड, आई थिंक वो एक अनदर डे का टॉपिक है, बट आई थिंक आई सॉ हिम आई गेस इन सेइंग दिस, बट या सो वुमेन, डॉग्स एंड अगेन चिल्ड्रन आर लव्ड अनकंडीशनली। और मैन का क्या करता, क्या है, कमाता क्या है तभी प्यार मिलेगा, नहीं तो भगो दी के लंडो है ना, ऐसे ही होता है। हाँ, सो द वे यू ड्रेस, अच्छा नहीं, ड्रेसिंग सेंस तो होना चाहिए। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ड्रेसिंग सेंस बट इट रिवील्स योर पर्सनैलिटी। खैर ये एक डिबेटेबल पॉइंट्स है मेरे को लग रहा है। और अगर ग्राउंडेड रहने की बात है ना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पर्सनैलिटी रियल में क्या है। अब उसे पर्सनैलिटी को जानेंगे कैसे? आपके एक्शन से, जो आपके मुंह से आ रहा है। आप अगर एक कनिंग माइंडसेट वाले होंगे और रियलिटी से अवे होंगे तो ठीक है, उसके जो मुंह से जब बातें निकलती तो वो ऑलरेडी पता लगता है, आइडिया आ जाता है आदमी का आधे से ज़्यादा, ठीक है, जो वो बोलता है वही सब कुछ होता है। बट हाँ, एक वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन, या किसी को ऐसा देख लिया अच्छी ड्रेसिंग सेंस में, तो हो सकता है व्यूज लोग बना ले, बट उसके ऊपर जो जज करके बैठ रहा है गधा है या गधी है, ठीक है। द शर्ट एंड बेल्ट आर द सेम कॉम्बिनेशन। ये एक सर्वे स्टडी मेरे को इट कॉट माय अटेंशन। व्हाई डू 50% ऑफ इंडियन वुमेन चीट ऑन देयर हस्बैंड्स? सो फक यू देयर। 52% पता नहीं किस बेसिस पे ये बोल रहा है, बट इस क्वेश्चन को मैं तो नहीं लेने वाला यार। ये इट साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, सो विल टेक अनदर टॉपिक। डू यू नो अबाउट नो Do you believe in love? Of course I do. What can someone do if a woman says that you are not a real man? भाई लड़की कह रही है कि तू रियल मैन नहीं है, अबे रियल बन फिर, या मत बन, तुझे नहीं लगता है तो क्या जरूरत है? मैच नहीं हो रही है चीजें तो मत बन तुझे लगता है तू रियल है तो रियल रहे। Why do 80% of girls look cute but only 10% of boys look handsome? अपने चश्मे उतारो सालो, कभी उस लड़के की माँ से पूछना लड़का मेरा कितना हैंडसम है, ठीक है, वो बताएगी तुम्हें। यहाँ पे सारे ने फोटो चिपका दिया, गर्ल्स लुकिंग ऑन बॉयज, टॉम एंड जेरी का बॉयज लुकिंग एट गर्ल्स। हट। What are you mostly complimented for? चलो ये भी ले लेते हैं, बट किसी ने अपना शेयर किया है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो किस किस चीज़ के बारे में। आई गेट मोस्टली कॉम्प्लीमेंटेड फॉर माई आईज, आई लैशेज, आईब्रोज, हेयर। ये लड़की लिख रही है पक्का आंसर, ठीक है इसमें क्या है, म्यूजिक टेस्ट ऑल्सो इज बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड। आई डोंट नो दैट पीपल्स कॉम्प्लीमेंट आइडियोलॉजिस्ट। वो मुझे जो वो मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा रहे थे यू गॉट इट गर्ल, चने की झाड़ पर चढ़ाना ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर इंटरेस्ट। ये तो एडवर्टाइजमेंट किसी भी टॉपिक में घुस के आता है। अभी पता है क्या रहा है, विच इज द बेस्ट टेलीग्राम चैनल फॉर ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। इसमें मैं एक ही रिप्लाई दूंगा, विच इज द बेस्ट टेलीग्राम चैनल फॉर ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, एंड व्हाट माय रेस्पॉन्स टू दिस नाउ इज, व्हाट द फक आर यू सेइंग, व्हाट द फक आर यू सेइंग, व्हाट द फक आर यू आस्किंग, दैट इज माय रेस्पॉन्स। We are not talking about saddest things. इसमें एक क्वेश्चन है, what is the saddest thing you have seen today? But no, I am not taking this question right now. What made you feel good to do something
for your love. चलो ये ले लेते हैं यार. My sister has been saving for a PC for over a year, but 2020 sucks. So he's talking about 2 years before. She had to put her cat down, lost her job due to COVID, had to burn though her PC savings in the last few months. Her birthday is next week. I decided to try and make this year a little better for her. So hey, good job, man. So he got a PC for his sister. Kudos to this guy. Kudos to this brother. I mean, that's really important. You are standing up for a woman, and yeah, kudos to you. That makes somebody's day. Awesome. Now can we take up another topic, और एक अच्छा topic है meditation and realization. Let us see what does it have to say, meditation and realization. एक अच्छा क्वेश्चन आया यार. Is there a place in Himalayas where I can spend some days, months, or maybe the rest of my life in meditation and spirituality? I heard about the Paroksha Yogi community, but how do I join them? This sounds interesting. और हिमालयास की बात हो रही है तो यार हिमालयास तो किसी भी चाइल्ड का ड्रीम हो सकता है, बिकॉज वेन एवर यू सी इन मूवीज जहाँ पे भी हिमालयास दिखाता है, आई थिंक इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स natural aesthetics. I'm just visualizing Himalayas and visualizing myself meditating in Himalayas. Oh man, even मुझे पता नहीं था कि ये कोई कम्युनिटी है called Paroksh Yogi community, but it seems like there is something like that which can allow you to be there in Himalayas. तो देखते हैं क्या बोल रहा है. I am glad to answer this question for you. Since you have specifically asked for joining Paroksh Yogi community, so yes, you can join the community and spend days, months, or whole lifetime practicing meditation, yoga, and spirituality away from the hustle bustle of life and seclusion in the Himalayas. For sincere spiritual seekers, member of Shri Paroksh Yogi community have formed a trust called Aham Shunyam Foundation Trust, and one of the spiritual seekers has donated a land in Nainital, Uttarakhand to construct a Shiv Shakti temple and a monastery to make it a high vibration place for seekers to stay in the deep meditative states for longer period of times. ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है यार, to be in the longer period of time. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विपाशना वाली बात है कि 12 घंटे मेडिटेशन या 14 घंटे या उससे भी ज़्यादा घंटों के लिए अगर मेडिटेशन करना है तो आई थिंक डीप मेडिटेटिव स्टेट्स के लिए हाई वाइब्रेशन प्लेसेस सो इम्पॉर्टेंट. गाजियाबाद रहे तू हमेशा आबाद. अगेन द वेस्ट कलेक्टर नगर पालिका ट्रॉली इज हियर टू कलेक्ट वेस्ट अराउंड माई होम. ओके, सो विद शिवाज ग्रेस द अपकमिंग, थोड़ी देर ये म्यूजिक चलने देते हैं यार. आई विल ऑल्सो रीड बाय द टाइम, और आप ये एंजॉय कीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक. वीकेंड्स पे क्या कर रहे हैं यार आप लोग? टुडे इज सैटरडे, दिस इज सैटरडे मॉर्निंग. किसके क्या प्लान है? फेस्टिव सीजन आ गया है, कौन क्या कर रहा है? हाँ, क्या प्लानिंग है लोगों की? किसने क्या खरीद लिया है? कौन क्या शॉपिंग करने जा रहा है? हाँ, धनतेरस भी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन हु इज व्यूइंग दिस. Right, so with Shiva's grace, this upcoming temple lies in the same belt of 79-degree longitude in which several sacred temples like Kedarnath, Badrinath, Panch Kedas, Panch Badri, Jageshwar, Rameshwaram, Tirupati, etc. are situated. Aham Shunyam Foundation Trust. Right, so this is a brilliant piece of information. So this place is for all those people who want to practice meditation and evolve in the path of spirituality and explore their inner dimensions. This place is for all those people who want to practice meditation and evolve in the path of spirituality. To join the spiritual community, there are certain mandatory preparation steps which needs to be followed and are shared below.
ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम फॉर 21 days. आई थिंक उन्होंने बता दिया है सारा और दिस अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. थैंक्स फॉर दिस. ये अच्छा है यार. What are the qualities that a guru wants in his disciples? आप जिन गुरु से डायरेक्शन ले रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो आई थिंक उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं. बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें तो शायद ये सिखाया जाता है कि कोई एक्सपेक्टेशंस किसी से रखनी नहीं चाहिए. बट इधर मामला गुरु का है तो आई थिंक ये तो वही है. पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोण, उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी ना, तो शायद इसमें भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा. लेट अस सी. When most people are busy finding the qualities of a true guru, only a true seeker can ask this question. They say 99.999% people will not realize their true self in his birth or in their birth. Because most people are too attached to their dream called life attachment. और फिर आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आता है कि इससे थोड़ा सा वो स्पेस बनाओ, लाइफ से डी अटैचमेंट करो, यानी ओनरशिप्स की बातें ज़्यादा मत करो, ज़्यादा ये सब मोह माया और वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाता है ना. बिकॉज मोस्ट पीपल आर टू अटैच्ड टू दिस ड्रीम कॉल्ड लाइफ. फ्यू पीपल हु वांट टू रियलाइज देयर ट्रू लाइफ आर बिजी फाइंडिंग हु इज एलिजिबल एनफ टू बी माई गुरु. या ये भी बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है. हु शुड बी माई गुरु, हु शुड आई टेक माई एडवाइजेस फ्रॉम. मुझे जो डायरेक्शन जो मिलनी चाहिए वो कैसे गुरु से मिलनी चाहिए. आई मीन इट्स सो इम्पॉर्टेंट. बट मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा आप सारे समय ही ब्राउजिंग करते रहेंगे. कोई तो ऐसा ऑनलाइन मिला होगा या किसी से तो आप इन पर्सन मिले होंगे जिसकी वाइब्रेशन, जिसके थॉट्स, जिसके सेंस, जिसकी सिक्स सेंस आपसे मैच करती हो. अपनी भी तो सिक्स सेंस होती है भाई, जो अंदर से एक आवाज़ आती है ना, ये काम मत कर, ये काम कर ले, ये कॉल मत ले, ये कॉल ले ले, रिच हो सकता है, ये बैड डिसीजन हो सकता है, गुड डिसीजन हो सकता है. उस कॉल को कि कोई ना कोई तो फॉलो करते हुए मिला होगा. लाइक मेरे को खुद को ऐसा कोई गाइड, मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि किस गुरु को लेना चाहिए, किसकी बातें सुननी चाहिए. एक्सक्यूज मी प्लीज. गॉड ब्लेस मी एंड गॉड ब्लेस एवरीवन. तो मुझे भी ऐसा लगा था. सो फिर देन आई स्टार्टेड टू ब्राउज फ्यू स्पिरिचुअल वीडियोज. आई सॉ मैनी पीपल बट देन समबडी हु आउटकास्टेड एंड फिट माई डायमेंशन. सो व्हाट आई वाज सीकिंग वाज ईशा फाउंडेशन एंड the guru who I find will be the guru for my life will be Sadhguru, and his books are the ones I like to read and follow just because my frequencies of feelings की भी frequency होती है. ये कोई साइंस बैक नहीं है बट मैं साइकोलॉजिकल वे से बोल रहा हूँ. सो जो फीलिंग्स हैं वो उनके थॉट से बहुत मैच होती है और उनके जो आंसर्स हैं वो जैसा चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे उसमें बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉमन थॉट लगता है जिससे मैं रिलेट कर पाता हूँ. चाहे जब भी वो हिंदी में बात कर रहे होते हैं या इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं. मोस्टली मैंने उनके इंग्लिश वीडियोस जब मैं शुरू में देखा था तब मैं उनके इंग्लिश वीडियोस देखता था, उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता था. बट देन मैंने फिर उनके हिंदी वीडियोस भी कुछ ब्राउज किए. मतलब वो कुछ नहीं है, वो तो इंग्लिश में ही बोलते हैं ज़्यादातर. और आज तक कभी ऐसा मेरा लक तो हुआ नहीं है कि मैं उनसे कभी जाके मिला हूँ या फिर ईशा फाउंडेशन को विजिट कर पाया हूँ. बट देन देर आर वेरी फ्यू इवेंट्स दैट आई मिस when he is posting things online. Or Sadhguru app is also there. That is also a shout out to Sadhguru app. Really, if you want to change your life, you want to start browsing a guru for you for some direction, or maybe you are just looking at somebody who is wanting to vibrate with your feeling, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है. So when the disciple is ready, guru comes automatically. ये ट्रू बात है. प्राइमरीली a true guru looks for two types of qualities. Either the student should be ready to surrender all his desires, identities, ego. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखो, अगर आई थिंक ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं कि जब when you are not ready to let go of things. सरेंडर की बात हो रही है तो इट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो थिंग्स. और बहुत सारे लाइफ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें लेट गो के अलावा कोई और ऑप्शन एक पीसफुल माइंड से जो है बेटर है ही नहीं.
सो लेट गो से ऐसा भी हुआ है कि कई बार लोगों की लाइफ्स बच गई हैं. लेट गो से ऐसा भी हुआ है कि इट हैज़ बीन अ लाइफ सेवियर फॉर नॉट ओनली किड्स, फॉर नॉट ओनली एडल्ट्स, फॉर नॉट ओनली ओल्ड एज पीपल, फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन, राइट. एंड ये लेट गो जो फीलिंग अगर आप में नहीं है तो यू कैनॉट. एक मार्शल आर्ट्स में जो बोलता हूँ ना, सो मार्शल आर्ट्स इन सभी का कॉम्बिनेशन है बेटा. जो लेट गो वाली फीलिंग अगर नहीं है ना, सो इफ यू डोंट लेट गो आलस, इफ यू डोंट लेट गो दैट ईगो कि मैं ही बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, मेरे को ही सभी कुछ आता है, मैं ही हूँ, मैं ही सबसे खतरनाक हूँ, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ. 6 महीने के लिए मैंने एक मूव प्रैक्टिस कर लिया तो मैं जाके यूएफसी में खड़े होकर उन लोगों को हरा दूंगा. या इट डजंट वर्क दैट वे. वहां पर जो 20-20 साल से लगे हुए हैं ना, कई बार उनको चांस नहीं मिलता बिकॉज वो कभी एक नेशनल लेवल पे भी नहीं जीते होते हैं. और दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर ऐसे ही होता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी ईगो रहती है, कुछ ना कुछ रहता है. यू आर नॉट सरेंडरिंग टू थिंग्स, टू ट्रूथ. और जब सच के ऊपर आप सरेंडर नहीं करते तो मुझे लगता है कि सारी चीजें उल्टी ही होंगी, है ना. सो इट विल बी एन अनरियल वर्ल्ड यू विल बी वर्किंग ऑन, इट विल बी एन अनरियल थॉट, यू विल बी थिंकिंग दैट तुमने प्रैक्टिस की नहीं है, तुमने मेहनत की नहीं है, तुम्हें ब्लैक बेल्ट तुम्हारे पास है नहीं, तुमने किसी चीज को अचीव नहीं हो, और तुम्हें चाहिए क्या कि तुम जाओ और compete करो. वो भी किससे? एक उस लेवल एथलीट से जो 20-25 साल से ट्रेनिंग कर रहा हुआ है. कुछ एथलीट्स तो ऐसे भी है रशिया के जो मात्र 4 साल की एज से लगे हुए होते हैं इस फील्ड में, ठीक है. तो जब तक बाय द टाइम ही इज 27-30 ही हैज ऑलरेडी प्रैक्टिस हिज होल लाइफ फॉर द मूवमेंट टू बी स्टैंडिंग इन दैट रिंग, राइट. सो जस्ट मैं ऐसे ही फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल लेवल पे बातें बताता रहता हूँ विद एग्जांपल्स जो मुझे रिलेटेबल लगती हैं. तो जस्ट माय व्यू. So it's not I'm not saying it's the 100% correct view of whatever it is, but it is my view and what my belief and thinking says about it. So either a student should be ready to surrender, or the desire to realize the true self should be so intense that nothing else matters to you. ठीक है. तो टू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ में मुझे लगता है कि मैजिक ऑफ वर्ल्ड है. अगर आप ट्रू सेल्फ को रियलाइज थोड़ा सा भी कर पाएंगे तो आप उस अनरियल वर्ल्ड से, अनरियल थॉट से, अनरियल प्रैक्टिस से दूर जा पाएंगे. एक अनरियल प्रैक्टिस है जैक ऑफ. ये तुम्हारा काम है ढूंढना मैं किस प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा हूँ. जैक ऑफ मैंने बोल दिया है. A person who has read too many scriptures, spiritual books and believe in certain concepts is not considered eligible. In fact, it causes hindrance in spiritual growth. ये भी important है कि ये प्री माइंडसेट्स बना के जो बुक्स ज़्यादा पढ़ के एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लेते हैं ना, सो फिर उसके लिए भी एक मुश्किल है. So those who have already filled their mind with lot of theories, they find it very hard to surrender later on. So ये वही बोल रहे हैं ना कि प्री मेडिटेटिव एक स्ट्रोक सुना है क्रिकेट में, ये ना ये पहले से ही थिंक करके उस स्ट्रोक की पोजीशन में आके उसको एग्जीक्यूट कर देता है. सो एक वो भी कई बार काम नहीं करता और बोल्ड हो जाता है बैट्समैन तुरंत देखते ही, और यू नो बॉलर का फायदा हो जाता है या फिर विच एवर टीम द पर्सन इज प्लेइंग फॉर उसको फायदा हो जाता है. सो ए ट्रू गुरु विल नॉट गिव यू न्यू थियरीज, द थियरीज आर ऑलवेज देयर इन दिस वर्ल्ड. एंड ये सही बात है. ही विल हेल्प यू क्लेंस द गार्बेज यू हैव गैदर्ड सो फार, right? Yeah, that is a quality of a true guru. So he will help you what? He will help you cleanse the garbage you have gathered so far by breaking your concepts and crushing your ego mercilessly so that only your true self remains. और ये बहुत important है यार. Only rare few are blessed with true guru by divine consciousness. So I think this is all I have for today's episode and my ranting. And happy day, happy festive season, happy Dhanteras. Have a cheerful life, awesome life. Good day, people. Yo. No.